Rule of law and respect for rights. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ, ତାର ଆବସେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଜିମ୍ବାୱେର। ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳିଲା 1980ରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇନରିଟି ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ସେଠିକି ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ବିନ୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଏ ଜାନୁ PF, ଦ ପାର୍ଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଡ୍ ଦ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତେଣୁ ସେତେବେଳଠୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା କିଏ? ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯିଏକି ସେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇନରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଦେଶକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପାର୍ଟିର ନାଁ ହେଲା ZANU-PF, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଜାନୁ PF ହେଲା। ତ କେହି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କିଛି ୟାକୁ ନିଅନି। ଇଟ୍ସ ଲିଡର ରବର୍ଟ ମୁଗାବେ ରୁଲ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରଠୁ ୟାର ଯେଉଁ ଲିଡର ଥିଲେ ଏ ପାର୍ଟିର, ସେ ହେଲେ ରବର୍ଟ ମୁଗାବେ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରୁଲ୍ କଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ହେଲ୍ଡ ରେଗୁଲାରଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଓନ୍ ବାଇ ଜାନୁ PF। ତ ଯେତେଥର ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସବୁଥର ଏଇ ପାର୍ଟି ଜିତିଲା। ଇମୋସନାଲି ହେଉ କି ପାୱାରଫୁଲି ହେଉ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ଥିଲା, ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ରେଗୁଲାର ହେଲା ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଜାନୁ PF ପାର୍ଟି ଜିତେ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଗାବେ ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ବଟ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଅନଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ବହୁତ ପପୁଲାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ଇଏ ମୁଗାବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲେ? ରବର୍ଟ ମୁଗାବେ ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଇଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପପୁଲାର ବି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଅନଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ଅନଫେୟାର, ଆର୍ କାହିଁକି ଅନଫେୟାର ହେବ? ତୁମେ ତ ଏତେ ପପୁଲାର, ପୁଣି କାହିଁକି ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କରିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଡଟି ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୋଟେ କରିବ? କ'ଣ କଲା? ଓଭର ଦ ଇୟର୍ସ ହିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଭରାଲ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ହିମ୍ ଲେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କଲା। ଏଇ ବର୍ଷ, ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ନିଜର ରୁଲ୍ ଭିତରେ ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କଲା ତାଙ୍କ ଦେଶର, ଯେମିତିକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଯେତେ କମ୍ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ତା'ର କୌଣସି ଦୋଷ ସେଥିରେ ନଥିବ। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୋଷୀ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ୱାର୍କର୍ସ ୱେର୍ ହ୍ୟାରାସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମିଟିଂ ଡିସରପ୍ଟେଡ୍। ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିମାନେ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ୱାର୍କର ମାନେ, ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ ହାରିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ହାରିଯାଇଥିବ, ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିବ, ସେ ହେଲା ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ହାରାସ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ସେ ଜାଗାରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଇଲିଗାଲ୍। ତ ଯଦି ତୁମେ ପବ୍ଲିକରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା କଲ, କିଛି ଗୋଟେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗଲ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ହେଲା ଇଲିଗାଲ୍। ତ ୟାକୁ କେହି କରିବେନି। କରିବେ କାହିଁକି? ଜେଲ୍ ଯିବେ କାହିଁକି? ମରିବେ କାହିଁକି? ଏସବୁ କରାହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲା? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରବର୍ଟ ମୁଗାବେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରିବନି, ସେମିତିଆ ଲ ହିଁ ତିଆରି ହେଇନି। ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରିବନି ହେଲା। ତ
क्रिटिसाइज केमिति करिवो होय तो एमिति थाइ पारे क्रिटिसाइज एमिति कर जदि केही सुनि परिबेनी तामाने को तमने माने स्वप्न रे ना बाथरूम भीतर तो टेलीविजन एंड रेडियो वेर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन टेलीविजन रेडियो भी सी किसी कम नथिले तांको कंट्रोल करा होतला ना गवर्नमेंट कंट्रोल करथला तेणु सी कौन करेंगे टेलीविजन रेडियो से जहाँ सिचुएशन से ताकू चाहिए काम करुले तेणु से केवल रूलिंग पार्टी माने प्रेसिडेंट रो भल जिनस गुड़ा देखेबे तो रूलिंग पार्टी वर्जन ताने जहाँ किसी असुविधा हम रूलिंग पार्टी को जमी सपोर्ट मिले से देखेबे मैं तारी फॉर रे केवल था आ क्रिटिसिजम देखे ना तो देखेब कौन जदिवा थिले भी देखे पार ना कारण टोटाल मीडिया को कंट्रोल करिछि गवर्नमेंट देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स किछिटा न्यूज़ पेपर थिले जो माने इंडिपेंडेंट थिले गवर्नमेंट तांको जो माने इंडिपेंडेंट माने होछि से प्राइवेट हो पारंती से गवर्नमेंट को डर नथिले हला से भी थिले बट किंतु गवर्नमेंट हैरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट तेणु जेकोसी जर्नलिस्ट जदि ता एगेंस्ट रे गला ताले माने कौन करेंगे ताकू हारास करेंगे हैरान करेंगे ताले किए करिवो एंतरे डरिले लोक हारास करेंगे मारिबे जीवन शेष को भी करदेवे गवर्नमेंट अगेंस्ट तुम जापारे कौन प्रकार द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस तेणु केते गुडे कोर्ट रे मध्य जजमेंट दिया गवर्नमेंट अगेंस्ट ये जो कम गुड़ा करुँचे एगुड़ा बहुत खराब ताकू नहीं कोर्ट जजमेंट देला ये गवर्नमेंट एमतिया जे से जजमेंट को भी मानिल नहीं है से बिल्कुल आम या मानवर ना जजमेंट एगेंस्ट गलनी उल्टा जज को जितक जजेस थे जेटा फाइनल वर्डिक्ट शुणी सब प्रेसराइज करागला या तुरंत कौन करा डिसमिस करा आम एगेंस्ट आम कि ना कौन सी सेंटेंस तुम आमको दे पारनी माने दंड दे पारनी है तो कारण आम हूँ रूलिंग पार्टी तो ये सब भितर एते बहुत वर्ष पड़ेगा 1980 रे पाइला ना इंडिपेंडेंस 2017 होगा ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 ताकू ऑफिस रु कढ़ागला माने निज पावर से हटिला 2017 ने जाइए बुझे तो रॉबर्ट मुगाबे ओके ये तो गला आम जिम्बाब्वे कथा जो पढ़ुले द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy but it is not sufficient तेणु जिम्बाब्वेर एग्जाम्पल आमको यह जना पड़ा जे पॉपुलर अप्रूवाल थिला लोक माने रूलर को बहुत चाहूले प्रथम बहुत भोट करके जीतले किंतु जोटा कि डेमोक्रेसी नेसेसरी जरूरी मध्य किंतु कौन है यहाँ कौन सफिशिएंट थिला लोक मैंने जिते पॉपुलारिटी लोक मान भितर तुम थिले कौन हम तुम ठीक रे चलुच कि तेणु पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक पॉपुलर तुम गवर्नमेंट जब पॉपुलर हो अर्थ नुह तुम डेमोक्रेटिक तुम अनडेमोक्रेटिक हो पार तेणु पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक आ तुम ऑटोक्रेटिक हो तुम रहिल तापर तुम पुओ ता पुओ एमती चलो तो यहाँ तो डेमोक्रेटिक नुह बिल्कुल इफ यू विश टू एक्सेस ए डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस तेणु गोटे जगार गोटे देशर डेमोक्रेसी केमिता आम आसेस करवा तेणु आम आसेसमेंट रे आम प्रथम कौन देखा इलेक्शंस देखा बट इट इज इक्वाली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस खाली इलेक्शन देखीदे होनी जे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगला वोटिंग राइट्स मिलगला ये सबटा इम्पोर्टेंट नुह ता सहित बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस आम किसी जिन को देखा पड़ो देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस तेणु ता भितर आमको किसी सफिशिएंट फैसिलिटी थिबा दरकार सफिशिएंट रूम मिला दरकार जो गोटे नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी सेठी कौन होता विषय जानिया दरकार कौन ना पॉलिटिकल अपोजिशन केमितिया तांको सेतिकी राइट्स बा अधिकार मिलुची ना नहीं
आउ केते से इलेक्शन रो पीरियड समय पुणी सेतिकी सुविधा मिलूँ ना 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 तो अपोजिशन न रही तो समस्ते जी जीतुव से तो जीति चली तो दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स तो ये जना पड़ुची जे स्टेट को दरकार हो से रेस्पेक्ट करू सिटीजन मानकर बेसिक राइट्स जो गुड़ाक अति फंडामेंटल राइट्स जो गुड़ाक से गुड़ाक तो कम से कम से रेस्पेक्ट दो से तो कम से कम ग्यारंटी मिलू लोक मानू सो दे शुड बी फ्री टू थिंक टू हैव ओपिनियंस टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक टू फॉर्म एसोसिएशंस टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस तेणु लोक मैंने जमी फ्री हेबे जेको जिन चिंता करने भल मंद निज देश को आगू बढ़ाई ओपिनियन दे पारे चिंता करें पब्लिक रे एक्सप्रेस करें निज कथा को एसोसिएशंस फॉर्म करें पॉलिटिकल एक्शंस नहीं पारे प्रोटेस्ट करें ये सब अधिकार तेणु ताको यदि तुम गवर्नमेंट जदि न दे पार ताले से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नुह तेणु एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ समस्ते नियम आगे कानून आगे समस्ते समान हवा उचित दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट तेणु ये जो राइट्स गुड़ाक अच्छी ये प्रोटेक्ट हवा दरकार निश्चय प्रोटेक्ट हवा दरकार का द्वारा गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बर्तमान आम कौन देखिले से जुडिशियरी इंडिपेंडेंट थिला कि रॉबर्ट मुगाबे ताको मानिया को मना करदेला जज वर्डिक्ट देला पर भी डिसीजन देला पर भी तामाने से की प्रकार इंडिपेंडेंट ताले हला तेणु हेबनी जार ऑर्डर्स गवर्नमेंट ओबे करिवो समस्ते ओबे करिवे बाध्य कहीं से मन इच्छा वर्डिक्ट आसी जाऊनी आमर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन ही वर्डिक्ट आसो जहाँ भी हो या विषय आम अधिक अधिक राइट्स विषय पढ़ा चैप्टर 5 रे सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस तेणु इलेक्शंस पर गवर्नमेंट केमती काम करिवो कोन ताकू नै कि मध्य किछिटा उपाय अछि किछि कंडीशंस मध्य अछि एटा अप्लाई होछि जे गवर्नमेंट केमती काम करिवो सो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैंट डू व्हाटएवर इट लाइक्स simply because it has own an election तेणु गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोली से जहाँ चाहेब से करदेव कि नाई करें कहीं से इलेक्शन जीति जाइए बोली ता इच्छा से देश भितर जहाँ चाहेब से कर ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेमिति करिपरिबो नाही इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स जब सेमती कर रॉबर्ट मुगाबे भाया समस्ते गोटे गोटे हो तेणु गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट करिया पड़ो से बेसिक रूल्स गुड़ाक केते गुड़े जो अच्छी ताकू रेस्पेक्ट देवा पड़ो इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम ग्यारंटीज टू द माइनॉरिटी जो मैंने माइनॉरिटीज अच्छे किसी ग्यारंटी मिल एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस आ जे कौन सी मेजर डिसीजन तुम नब ए बहुत गुड़े कंसल्टेशन करिया पड़ो लोक मान सहित मंत्री मान सहित है तेणु गवर्नमेंट एमि सेमती सब डिसीजन नहीं पारिबनी एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ तेणु जी भी ऑफिस लीडर्स बियरर्स माने अच्छे समस्ते पाखे किसी ना किसी सर्टन राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी किए देछि आम कॉन्स्टिट्यूशन एवं तार सहित लॉ द्वारा असाइन से मन इच्छा करें किसी ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स तेणु लोक मानक पाखरे मध्य से माने अकाउंटेबल एवं ता सहित इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स जो माने तांको पाखरे मध्य से माने अकाउंटेबल रहिबे सब किछि स्टेप बाय स्टेप ही जीवो तो याको अधिक जानिया को हम चैप्टर 4 पढ़िया पड़ो है तो तेणु लास्ट को आम आसीगले
both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. आसे सबुठु शेष आ फाइनल मा फोर्थ फीचरटा आम ये देखा डेमोक्रेसी कौन जे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विदिन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तेणु गोटे डेमोक्रेटिक रूल करिया को हेले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कौन करिया पड़िबो रूल करिया पड़िबो किछि लिमिट भितर तार भी किछि लिमिटेशन अछि जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को मानिबो एवं ता सहित सिटीजन्स मानकर राइट्स को मध्य मानिकी बा रेस्पेक्ट देकी चलिबो ताहले जाय कि से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गोटे बेटर फॉर्म रे आसी परिबो हला। तो ये सब जिनस जानिया भितर आम कौन जानिले शिखिले जे गोटे समरी डिसीजन आम एबे नवा बहुत गुडे फीचर्स आसिला आ गोटे सिंपल डेफिनेशन मध्य आम नैथिले तेणु समरी definition naba let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो ये सब को सम अप करवा शॉर्ट फॉर्म देखा ताले आम कौन करवा डिस्कशन को ताले स्टार्ट करथिले कौन ना सिंपल डेफिनेशन थिला गोटे आमर एटा जे डेमोक्रेसी हज गोटे गवर्नमेंट फॉर्म जो रूलर माने इलेक्टेड होती पीपुल मान द्वारा किंतु से डिस्कसन आम बर्तमान कौ जाए पहुँचले बहुत गुड़े जिनस आम धीरे धीरे देखी आसिले कारण आम क्लारिटी आसीगला जिनस अधिक रू अधिक। सो वी फाउंड दैट दिस डेफिनिशन was not adequate unless we explained some of the keywords used in it. तो ये डेफिनेशनटा क्लीयर हो नथला adequate हो नथला कारण किसी जिनस एक्सप्लेन हो नथला आम बर्तमान सब किसी एक्सप्लेन कर सारे तेणु थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जांपल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तेणु ये सब सीरीज ऑफ एग्जांपल्स को आम देखिकी जहाँ आम बर्तमान गोटे गोटे देखिले 4टा फीचर ता भर बाहरला तेणु आम डेमोक्रेसी 4टा फीचर को बर्तमान बुझीगले। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच तेणु ता हिसाब से आम कौन करवा गोटे बड़ समरी डेफिनेशन आम एक दबा यहाँ मन रखिबो जे डेमोक्रेसी हूँ गोटे एमतिया गवर्नमेंट जो थे कि ये 4टा जाक फीचर थी तो 4टा जाक फीचर को तुम मन रख है कौन रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस जो रूलर माने लोक माने जहाँ को इलेक्ट कर जो रूलर माने लोक मान द्वारा इलेक्ट होती से माने सबू मेजर डिसीजन गुड़ाक से माने ही नेउथिबे। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शंस ऑफर करूथुबो आम गोटे चॉइस आ गोटे फेयर अपॉर्चुनिटी जो थे कि आमको सही अपॉर्चुनिटी मिलूथिबो आमको बाध्य कर नथिबे लोक मानको मिलूथिबो जहाँद्वारा से करेंट रूलर जी अच्छा रूलिंग पार्टी रे ताकू चेंज कर पावर तमरे रोथिबो। नंबर 3 रे हला दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। तेणु गोटे चॉइस आ गोटे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल पाखे थी लोक मान पाखे सदा बेले गोटे इक्वल बेसिस रे थिबो जदी। आउ लास्ट हूँ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। तेणु ये जो चॉइस को एक्सरसाइज करने द्वारा जोटा कि गवर्नमेंट को लीड करुथुबो आ से लिमिटेड होइथबो गवर्नमेंट किछि बेसिक रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन रो आ सिटीजन राइट्स को नहीं कि से लिमिटेड होथुबो हला तो तार चॉइस रे एक्सरसाइज जमते हो बुझे कम से लगौ यही 4टा फीचर यदि थी ताहले आम ताको डेमोक्रेसी बोली कहवा जोटा कि आम एबे जानिले। क्लियर ओके ये जाए समस्ते बुझीगल भल भाव में जदि या बुझीपार आम भल लगुच आम वीडियो ताहले या स्पेशली ओडिया पिला ये वीडियो मु करुच्ची तेणु आमर वीडियो को लाइक करो सांग मान सहित शेयर करो किसी भी असुविधा डाउट अच्छी ताको आम सहित शेयर करिपरिबो कमेंट बॉक्स रे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिगा
को बिल्कुल भी भूलिब ना। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करिवा। नेक्स्ट वीडियो रे देखो 1.3 व्हाई डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।